or data science first internal paper in very simple and clear way. So let's start. First question is gives the commonly used statistical measures to characteristic expression in complaint divided list of uncertainty evidence strength harm impact index. Discuss how this measure can be computed efficiently over the large complaint repositories. Okay, so सबसे पहले हम इसमें आंसर देखते हैं. इसका आंसर फर्स्ट वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर. वेरिएंस मेजर द एवरेज स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन. इसका फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एन टू आई इज इक्वल टू 1 एंड एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर 2 एंड होल स्क्वायर अपॉन एन वेयर एक्स आई जो है वो एच स्क्वायर है और जो एक्स बार है वो मीन है और जो एन है वो नंबर्स ऑफ कंप्लेंट्स है. इंटरप्रिटेशन हाई वेरिएंस कंप्लेंट्स. High variance complaints vary a lot in severity extent. Low variance complaints are concentrate around the mean. Efficient computation for large complaints data sets. A is streaming variance. A well-coded online algorithm works without storing all data at once. Separate formula for incoming complaints वाला है. So इसमें mean new is equal to mean old plus x minus mean old on n. M2 new is equal to M2 old plus x minus mean old multiplication x minus mean new. So variance is equal to m2 upon n small n. Okay. Works on millions of records useful when reading logs line by line. B is distributed partitioned computation head of each partition computes local count, local mean, and local m2. Then merge using the parallel reduction. C is approximate sketches for very large data set. T set hyperlog variants and GK sketches. This estimated variance passed with very small memory, small variance diagram, small variance diagram, large variance diagram. Okay, so जब हम कंप्लेंट डाटा को एनालिसिस करते हैं जैसे सेवरिटी एविडेंस स्टैंड या हार्म इंडेक्स तो सिर्फ एवरेज देखने से काम नहीं होता है. हमें ये समझना होता है कि डाटा कितना स्प्रेड है. इसी को बोलते हैं डिस्क्रिप्शन. इसके लिए ये सबसे पावरफुल मेजर्स यूज होते हैं. पहला जो है वेरिएंस होता है. ये बताता है कि कंप्लीट मीन से कितना दूर जा रहा है. लार्ज डाटा सेट में हम स्ट्रीमिंग वेरिएंस या डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएंस यूज करते हैं जिससे सारा डाटा डाटा मेमोरी में लोड नहीं करना पड़ता है. सेकंड है स्टैंडर्ड डेविएशन. Standard deviation is the square root of variance given the distribution is the same unit as the original scores. Their formula is sigma is equal to under root sigma square. Interpretation first is helps understand on average a complaint deviates from mean by unit. Second is very useful for DSS threshold. High severity complaint is equal to mean plus 2 sigma. Efficient computation first is uses the same streaming distributed techniques as variance. Second is for extremely large data set, approximated ST from approximate variance. Interquartile range IQR. IQR measures the middle 50% split of complaint score. Their formula is IQR is equal to Q3 minus Q1, where Q1 is equal to 25th percentile and Q3 is equal to 75th percentile. Interpretation, the reverse dispersion measures not second is not affected by outliers. Efficient computation for large dataset is GK quantile summary computes approximate Q1 and Q3 with a small memory. B is DDICSET. Ideal for streaming complaint score works extremely well is percentile computation. C is reservoir sampling. First is keeps a small random sample. Second is approximate. IQR from the sample. IQR बॉक्स डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पर. सो सेकंड स्टैंडर्ड डिवीजन वेरिएंस का एक स्क्वायर रूट है. ये बताता है कि एक कंप्लेन एवरेज इसको स्कोर स्कोर से कितना डेविएटेड है. डीएसएस सिस्टम ऑफ्टन थ्रेशोल्ड देते हैं जैसे मीन प्लस 2 ST इज इक्वल टू हाई सेवेरिटी. थर्ड जो है IQR.
ये मिडल 50% कंप्लेन का स्प्रेड बताता है। आउटलियर इसका कैलकुलेट करते लार्ज स्केल सिस्टम में टी डिक्सेट या जीके एल्गोरिथम यूज होते हैं जो क्वांटल निकालने के लिए है। ठीक है। तो इन तीनों को मिला के डीएसएस रियल टाइम लार्ज स्केल कंप्लेन एनालिटिक्स एक्यूरेसी मिलती है। ये मॉडर्न पुलिसिंग सिस्टम में बिल्कुल एसेंशियल मेट्रिक है। सेकंड क्वेश्चन इज शॉर्टेड। Second question is shorted evidence strand score 1 to 100 extracted from the compliance text is shorted values. The values, what is the mean score, what is the median, and B is what is are the model is comment on the modality, and C is what is the mid range, and D is estimate, and E is give the 5 number summary. F draw a box plot of the scores in the in this context. How is quantile प्लॉट डिफरेंस फ्रॉम द क्वांटाइल प्लॉट। तो ये सब अपने को उन सब का आंसर देना है, सोल्व करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें सेकंड का फर्स्ट ए वाला, व्हाट इज द मीन स्कोर, व्हाट इज द मीडियन। मीन स्कोर और मीडियन निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेट मीन सम ऑफ ऑल वैल्यूज। सम जो इसका इन वैल्यूज का जो सम है वो 809 आ रहा है। मीन इज इक्वल टू 809 अपॉन 27। अगर इसका डिवाइड करते हैं टोटल सम ऑफ वैल्यूज और टोटल जितनी वैल्यूज है उनका अगर डिवाइड करते हैं तो 29.96 आता है जो कि अराउंड 30 है। तो मीन स्कोर अपन 30 मान सकते हैं। मीडियन 27 वैल्यूज और काउंट। मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू एट द पोजिशन 27 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 14। सो 14th वैल्यू इज 25, तो मीडियन क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो व्हाट इज द सेकंड देखते हैं, व्हाट इज the model is comment on modality. Okay, so p में mode of modality लिखना है अपने को, तो count repetition and 25 appears 4 times and 35 appears 4 times. No other values appears this many times. Modes 25 and 35 modality by model. तो अब हम एविडेंस स्ट्रेंथ स्कोर को डिटेल में समझते हैं कि सबसे पहले मीन निकालने के लिए हमें सारे वैल्यूज को टोटल दिया है जो कि एडिक्यूट होना होता है, इसका 27 से डिवाइड किया है। मीन अप्रोक्सीमेट 30 आता है और जो मीडियन निकालना इसी है जो कि 14th वैल्यू है जो कि 25 है। और जो मोड्स है, मोड्स दो मिल रहे हैं 25 और 35, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बाई मॉडल। ठीक है। सी वाला देखते हैं, व्हाट इज द मिड रेंज। मिड रेंज इज इक्वल टू मिड प्लस मैक्स अपॉन 2। सो इसका सबसे मिनिमम वाला देखिएगा 13 है और जो मैक्सिमम वो 70 है। इन दोनों को प्लस तो में डिवाइड 41.5 पाएगा इसका मिड रेंज। एस्टिमेशन फोर्थ डी वाला एस्टिमेट 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 Q1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 एन प्लस इसका जो फॉर्मूला है 1 अपॉन 4 एन प्लस 1 इज इक्वल टू 28 अपॉन 4 इज इक्वल टू सेवंथ वैल्यू आ रही है। सेवंथ वैल्यू क्या है अपनी बी से, Q3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 एन प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 28 अपॉन 4। इसकी 21 21 वैल्यू आ रही है जो कि 35 है। तो Q1 क्या हो जाती है 20 और Q3 35। ई वाला लेते हैं गिव द 5 नंबर्स ऑफ समरी स्टैटिक्स और वैल्यू। सो मिनिमम 13 है, Q1 20 है, मीडियन 25 है, Q3 35 है और मैक्सिमम 70 है। ड्रॉ ए बॉक्स प्लॉट ऑफ द स्कोर्स। बॉक्स प्लॉट आपको ज़्यादा बॉक्स पे क्लियर दिख रहा है कि 70 एक एक्सट्रीमली हाई वैल्यू है, हाई वैल्यू जैसा लगता है। और जो मिड रेंज है उसके मैंने आपको दिखाया है कि मिड रेंज में मिन और मैक्स का एवरेज होता है जो 41 होता है, और जो क्वांटल में Q1 इज इक्वल टू 20 है और Q3 35 है। ठीक है। तो 5 नंबर्स ऑफ समरी से पूरा डाटा का स्ट्रक्चर मिल जाता है, तो 13 है, 20 है, 25 और 35 और 70 है। जी वाला सबसे लास्ट वाला देखते हैं इन दिस कॉन्टेक्स्ट हाउ इज ए क्वांटल क्वांटल
प्लॉट डिफरेंस फ्रॉम ए पॉइंटल प्लॉट। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो जी क्यू क्यू प्लॉट वर्सेस क्वांटल प्लॉट डिफरेंस निकालते हैं। तो क्वांटल प्लॉट उसका फर्स्ट पॉइंट प्लॉट्स डाटा क्वांटल वर्सेस देयर पोजीशंस। सेकंड इज शोन शेप्स स्प्रेड ऑफ एविडेंसेस फॉर ओनली। एंड क्यू क्यू प्लॉट प्लॉट डाटा क्वांटल versus theoretical distribution quantiles. It's an example of normal distribution used by DSS to check do evidence score follow normal and exponential uniform. And second is a straight line for good fit. और फिर फाइनली हम इसमें क्वांटल फ्लोट सिर्फ डाटा को शिफ्ट दिखाता है। लेकिन क्योंकि फ्लोट डाटा को एक टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कंपेयर करता है जो कि स्ट्रेंट लाइन आती है। तो मतलब डाटा जो थ्योरेटिकल एज्यूम डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। डीएसएस इसी बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम वेरीफाई करता है।